خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف دائر درخواست منظور۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کی ہدایت کر دی۔ ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو 10 روز کے اندر مخصوص نشستوں کی اثر نو تقسیم کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ارشد علی نے تحریر کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے درخواست دائر کی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کی تقسیم منصفانہ طریقے سے نہیں کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ نون لیگ کو 8 کی بجائے 9 سیٹیں دی جائیں۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے JUI کو 10 مخصوص سیٹیں دی ہے لیکن وہ حقدار 9 سیٹوں کی ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کی تقسیم کو نہ صرف آئین کے آرٹیکل 106 بلکہ اسے الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے رول 92 کے خلاف بھی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے تک اسپیکر کو حلف لینے سے بھی روک دیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے DHA فیز 6 میں رہائشی عمارت سے خاتون کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کی لاش 10 سے زائد دن پرانی ہے۔ واقعے کی مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائے گا یہ واقعہ ہے کیا؟ جی بالکل، یہ ڈیفنس فیز 6 میں ایک عمارت ہے رہائشی، اس کے 6 فلور کے ایک فلیٹ سے جو ہے لاش ملی ہے اور ابتدائی طور پر SSP ساؤتھ کہتے ہیں کہ یہ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ہے اور ناقابل شناخت لاش ہے کیونکہ 10 روز سے زائد پرانی یہ لاش ہے۔ 2024 سے جو ہے ان خاتون نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا، تو جو متاثرہ جو فلیٹ کا مالک ہے وہ بیلٹ کے ہمراہ آیا تھا، جس کے بعد جب اندر دروازہ توڑ کر گھسے ہیں تو یہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ SSP ساؤتھ کہتے ہیں کہ نمونے لیے جا رہے ہیں اور اس کی شناخت کے حوالے سے چیکنگ کی جا رہی ہے اور ان کا جو فون ہے اس سے اس کی شناخت جو ہے وہ حمیرہ اصغر کے نام سے ہوئی ہے کہ یہ ایکٹریس ہیں، اور مزید جو ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی۔ سابق چیئرمین فیسکو تحسین امان کے ڈیرے سے 149 ملکی اور غیر ملکی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گرفتار افراد مختلف اسکیموں کے ذریعے شہریوں سے آن لائن فراڈ کرتے تھے۔ ملزمان سے کمپیوٹرز، LCDs اور مختلف ڈیوائسز برآمد۔ ملزمان کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ بات کریں گے وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ درآمد کے لیے انتظامات مکمل، فوری عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے قدم اٹھایا گیا۔ درآمد کا طریقہ ماضی سے مختلف اور بہتر حکمت عملی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ماضی میں چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب وافر مقدار میں دستیاب تھی۔ قیمتوں میں استحکام کے لیے چینی درآمد کی جا رہی ہے۔ چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں دام بے لگام۔ لاہور میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے دام میں تیزی برقرار۔ کراچی میں ایک ہفتے میں چینی کی قیمت 8 روپے بڑھ گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں نرخ بڑھ کر 185 روپے فی کلو ہو گئے۔ شوگر مافیا چینی کی قیمتوں کو بڑھانے میں مصروف ہے۔ شوگر کارٹل کو لگام نہ ڈالی گئی تو ریٹیل مارکیٹ میں چینی کے دام 200 روپے ہو جائیں گے۔ چیئرمین گراسرز اینڈ ہول سیلرز عبدالرؤف ابراہیم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے صنعتی شعبے کی معروف کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ معیشت کی ترقی، برآمدات میں اضافے اور کاروباری برادری کے مسائل کے حل پر مشاورت۔ کاروباری شخصیات کی ملکی معاشی استحکام پر وزیراعظم اور حکومتی معاشی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کا سہرا حکومتی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے۔ مقامی وسائل پروکار لاتے ہوئے معیشت کی ترقی سے پاکستان کو خود کفیل بنایا ہے۔ کاروباری برادری کی جانب سے ملکی معاشی ترقی کے لیے تجاویز نہایت اہم ہے۔ ہر شعبے کے حوالے سے کاروباری نمائندوں اور ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ ترقی کا یہ طویل سفر ہم سب کو محنت اور باہمی تعاون سے طے کرنا ہے۔ شرکاء نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بجٹ عوام دوست اور کاروبار میں سہولت کی سمت بھی درست قدم ہے۔
जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाजिरी फातह ख्वानी की। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। आला सदर चीनी दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीनी दिफाई वफ्द की पाक फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का चीनी वफ्द का खैर मकदम पाकिस्तान और चीन के तारीखी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का अयादा किया। सरबराह पाक फिजाइया ने दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान दोस्ती के मजबूत रिश्ते का अयादा किया। एयर चीफ ने तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। अहम इजलास की सदारत की। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को FIA कराची जोन की कारकर्दगी और इशूज से आगाह किया गया। वेलकम बैक। बात करें मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई है। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद हैं। मुनहदम इमारत की सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची लियारी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज भी सामने आ चुकी है। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध का लियारी हादसा मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। चेहरे नहीं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। DG SBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है। उनका कहना था कि इस वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। ये साहनिया ऐसा नहीं है जिसकी अल्फाजों में आप मजम्मत कर सकें। गवर्नर हाउस हर काम में फ़ाल रहता है और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है। DG SBCA को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे लोगों की भी दिल आज़ारी हो और ये सियासी रुख इख्तियार कर ले। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, 5 दिन बाद जायवकुआ पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं, दाद रसी की जरूरत है। अच्छी बात है कि गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा है कि वो इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए हैं। निज़ाम बदलने का आगाज हो चुका है। मकदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन लियारी में जारी है। मकदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। कराची के इलाके बगदादी लियारी में इमारत गिरने का वाकया। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी जानिब वकील मोहम्मद हारून ने मेयर कराची, साबिक DG SBCA और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
कराची के इलाके बगदादी लियारी में सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की वजूहात जानने के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी 48 घंटों में जिम्मेदारों के तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कमेटी अपनी तजावीज़ पेश करेगी। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी में वकील मोहम्मद हारून ने मेयर कराची, साबिक DG SBC और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने मेयर कराची, साबिक DG SBCA, डिप्टी कमिश्नर साउथ, CEO इलेक्ट्रिक और कायम मकाम MD SSGC को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, DG सीपा, SSP सिटी और SHO बगदादी को भी नोटिस जारी करते हुए मेयर कराची और दीगर से 14 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पुलिस ने मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी कोशिश है बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। रिहाई नहीं हो रही तो कम अज कम रसाई का मौका देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था, हमें बात करनी चाहिए। बानी ने मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया था कि पहले मुस्बत इक़दामात होने चाहिए। फिल वक्त हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारी तो कोशिश है कि खान साहब की फिलफोर रिहाई हो, बुशरा बीबी की फिलफोर रिहाई हो। बिल्कुल पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है और कितने अरसा से 700 दिन से ज़्यादा खान साहब को रखा गया है, बीबी को जो इतना रखा गया, लेकिन इसके दौरान एटलीस्ट रिहाई ना हो फ़िलहाल, लेकिन ये एक्सेस तो आप रिस्टोर करें। उनका गुड जस्चर था, उनका ये था कि जी हमें बात करने चाहिए, हमारे साथ नहीं तो स्पीकर के ऑफिस को आप यूटिलाइज़ करें। मैंने इंशाल्लाह ज़रूर कहा था। उसके बाद मेरे खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब ने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था। अगर हुकूमत आपके साथ वो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है और सीरियसली ये श्योर करना चाहते हैं कि जी हम आगे करें तो कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए। हमारा डायलॉग का कभी भी कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था, ना दूसरे लोगों के साथ, मुक़्तदरा के साथ। वो भी एक वन पॉइंट पे हमारा एक राबिता इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन इन नो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा किसी के साथ बातचीत का कोई भी दौर नहीं हुआ। बातचीत लोग करते हैं तो बात आगे निकल सकती है और सियासी मसाइल का लोग हमेशा सियासी हल ढूंढते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। राहें जुदा नहीं है, हमारा अलायंस नहीं बन सका। मौलाना साहब के साथ हमारी कोशिश थी कि अलायंस बने। बानी ने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए, अब सिर्फ तहरीक रास्ता है। बानी ने कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी ने कहा तहरीक पर फोकस करें, जब भी तहरीक शुरू होती है तो फजूल बातें शुरू हो जाती हैं। PTI की लीडरशिप तहरीक की तारीख देगी। बानी ने मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं की। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI का सारा टब्बर मुलाकात करता है, बुशरा बीबी का टब्बर अलग मुलाकात करता है, बानी के वकील अलहदा मुलाकात करते हैं और हुक्म करें हम क्या करें। मतलब क्या जेल में एक जलसे का इंतज़ाम कर दें, जलसे में बानी PTI जेल से खिताब फरमा सके और शौक पूरा फरमा लें। अज़मा बुखारी का अलीमा खान से सवाल। अज़मा बुखारी मजीद कहती हैं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला के बेटे का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिशों के बायस नुकसानात की रिपोर्ट जारी। बारिश में मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के बायस नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान PDM पंजाब के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ भग और 7 जख्मी हुए। रावलपिंडी में बोसीदा इमारत गिरने से एक बच्चा जाँ भग हुआ। कलर सैदा में नहाते हुए 3 बच्चे डूबने से जाँ भग हुए। जाँ भग अफराद में खातून, 2 मर्द और 4 बच्चे शामिल हैं। मानसून बारिशों के बायस 3 मखदूश मकानात मुतासर हुए। 8 से 10 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों के बायस मरी, गलियात, महसेरा, कोहस्तान, एबटाबाद, बोनेर के बरसाती नालों में तोगयानी का खदशा है। चित्राल, दीर, सवाद, चांगला, नौशहरा, सवाब मर्दान के नदी नालों में भी तोगयानी का अंदेशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, DG खान, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान के बरसाती नाले भी बिपड़ने का खतरा है। बारखान, कोहलू, मूसाखेल, डेरा भुगटी, नसीराबाद के नदी नालों में भी तोगयानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है, जबकि शदीद बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी खदशा है।